پاکستان میں گستاخی کی خدا ہماری آبادی کم ہے کہ سب اپنی مرضی سے زندہ ہو یا بھی کوئی زندگی ہے. نہیں بھی اپنی بادشاہ چاہیے، ایسی بادشاہ جس میں واقع اپنی مرضی کے مطابق زندہ رہے، تمہارا مظالم نہ چاہیے. ارے یہ سیاست اسلام میں گستاخی کر رہا ہے، پکڑ اسے. تو کیا اس میں اتنی ہمت ہے جیسے پکڑے؟ اچھا تو اس خلافت میں بھی برابر رہا تھا. پکڑو اسے ساری رفا. مجھے قید میں ڈال دیا گیا. قید خانے میں مختلف قسم کے قیدی تھے، وہ بھی جنہوں نے ڈاکے ڈالے، خون کیے اور چوریاں کی، اور ایسے بھی جنہوں نے کچھ نہ کیا تھا مگر انجام کے باعث بن. قید خانے میں میری حکمرانی میں کمزور قیدیوں سے خوب خدمت کرتا کیونکہ سبھی مجھ سے ڈرتے تھے. وہاں کچھ قیدی یسوع کا ذکر کر رہے تھے. ایک شخص یسوع کو کسی ایسے موضوع کا ذکر کر رہا تھا جس میں اس نے پانی کے نئے بنا دیا تھا. سب بڑی دلچسپی بنی اور میں ان آدمی کے پاس جا کر بیٹھ گیا. وہ یسوع جس نے کانے گلیل میں پانی کو نئے بنا دیا تھا، سنا وہ یروشلم میں آ گئے. تم تو ابھی بھی آئے، کیا تم نے دیکھا ہے اسے؟ ہاں، میں نے بھیڑ میں کھڑے ہو کر دیکھا تھا. وہ گدھی کے بچے پر سوار تھا. بہت سے لوگوں نے اس کی راہ میں اپنے کپڑے بچھا دیے اور انہیں کھجوروں کی ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی، اور بڑی بھیڑ پکار پکار کر کہتی تھی، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام پر آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ دادا کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشانا. مگر تمہیں پتا ہے اس کے آنے کے دوسرے دن کیا ہنگامہ ہوا؟ نہیں، بیت الحال قید کر لیا گیا تھا. ارے بھائی، دوسرے دن وہ ہیکل میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ ہیکل میں بڑا بازار لگا ہوا ہے. اس پر وہ بھرا ہو گیا. اس نے سراسر کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا. اس نے کسی صوبے ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن نہ لے جانے دیا. اس نے کہا کہ یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ اگر تم نے تو اسے ڈاکوں کی کھو بنا رکھا ہے. وہاں پر کتنے سردار کہنے اور سکھی موجود تھے نا. انہوں نے جب یہ دیکھا تو بڑی جرافتہ. بعد میں انہوں نے یہ منصوبہ بھی بنایا کہ یسوع مسیح کو کسی طور بھی وہ ہلاک کر دے. یہ تو بہت بری بات ہوتی، کیونکہ جو معجزے وہ کرتا ہے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، کوڑیوں کو شفا، اور یہاں تک کہ اس نے کئی دن کے مدت لازر کو زندہ کر دیا. مگر وہ سردار کاہنوں اور فقیر فریسیوں کو اندھے راہ دکھانے والوں سے تشبیہ دیتا ہے اور انہیں صاف اور عقل کے بچے کہتا ہے. ہاں، یہ بات تو ہے. ویسے بھی سردار فقیر فریسی بڑے رتبے والے اور سازشی ذہن کے مالک ہیں. وہ کہیں اسے کسی سازش میں پکڑوا ہی نہ دیں. بچے، مسیح کو دکھ اٹھانا اور اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور ہے. کہ مسیح سے جب کوئی جرم بھی حرکت نہیں ہے تو کیوں مارا جا رہا ہے؟ میری کچھ دلچسپی مسیح کے بارے میں پیدا ہوئی کہ کم از کم دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون. یہاں تک کہ دو سپاہی جو کہ سردار کاہن کے گھر سے آئے تھے آپس میں باتیں کرنے لگے. انہوں نے اس منظر کو بیان کیا جب سردار کاہن اور قوم کے سربراہ لوگ یسوع کے خلاف. میں نے آپ سبوں کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ ہم سب مل کر یسوع کے بارے میں سوچیں. یہ وہی یسوع ہے نا جو ناصری کہلاتا ہے. جب یہ گدھی کے بچے پر بیٹھ کر یروشلم کے پھاٹکوں سے داخل ہوا تھا تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے تھے. وہ یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں. اگر یہی حال رہا تو ایک وقت آئے گا کہ ہم سے ہمارا یہ مقام چھین لیا جائے. لوگ ہم سے فرما چھوڑ دیں. یہودی اور سامری میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. مگر یہ یسوع آیا کہاں سے، کون اور کیوں کر اتنا مشہور ہو چکا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں تحقیقات کی ہے.
ये यूसुफ बड़ाई का बेटा है, बैतलहम के एक अस्तबल में पैदा हुआ था, जहाँ मारा मारा करता है और लोगों को ऐसी बातें सिखाता है जिनका जिक्र न हमने कभी सुना और न हमारा दिल में मान सकता है। और तो और बैठता गधी के बच्चे पर है और ख्वाब यहूदियों के बादशाह बनने का है। आखिर ये रहता कहाँ है, खाता पीता कहाँ है? रहेगा कहाँ, गुनाहगारों और कमीनों के साथ रहता है, उन्हीं के साथ उन्हीं के दस्तरखान पर खाता है। मैंने एक शख्स को पकड़ कर पिटवाया था, तो उसने बताया कि जब हम यीशु के पीछे जाते हैं तो हमें खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो चंद रोटियों और मछलियों से हजारों को खिला देता है। मैंने अपने तौर पर बहुत कोशिश की है कि लोगों को जबरदस्ती उसके पीछे जाने से रोकी, मगर हम नीले लंगड़े और कोड़ी जिन्हें हम देखना पसंद नहीं करते उसके पीछे दौड़ते। मैं तो समझता हूँ कि यीशु कोई जादूगर है, साज़ की मदद से शिफा देता है ताकि लोग उसके पीछे हो। कुछ भी हो, हमें इसे मरवाना पड़ेगा, इसी में हमारी बका है। पहले तो आप सब ये फैसला दें कि हम यीशु के साथ करें क्या। फैसला? फैसला क्या? उसे तो एक शांति मौत दी जाए, उसे सलीब दी जाए, सलीब। मुझे यकीन था कि आप सब मेरे हम ख्याल होंगे, इसीलिए मैंने उसे पकड़वाने का इंतजाम पहले ही कर लिया। वो क्या? उसका एक शागिर्द यहूदा इस्करियोती है जो उससे नाराज। उसका कहना है कि जब हम खाना खा रहे थे तो यीशु ने सब शागिर्दों के दरमियान मुझे निवाला दिया और कहा कि जो तबाक में मेरे साथ हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। यहूदा सख्त फरहम है और यीशु को पकड़वाने के लिए तैयार। मैंने यहूदा को 30 सिक्के दिए हैं, जिसके वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां यीशु अपने शागिर्दों के साथ है। और सुनो, यहूदा जिस शख्स का बोसा लेगा समझ लेना वही यीशु है, उसी को गिरफ्तार करना है। कहीं भलवा ना हो जाए कि आखिर हमें हुकूमत, हम इतने बात किया तो है नहीं कि उसे बगैर किसी अदालत के मरवा सकते। इसका इंतजाम भी मैंने सोच लिया है। हम लोगों को रिश्वत से खरीद लेंगे और यीशु को हाकिम आला पंतियुस पिलातुस की अदालत में ले जाएंगे। वहां ये सारे लोग उसके खिलाफ झूठी गवाही और दबाव डालेंगे कि उसे सलीब दी जाए। वाह, क्या तरकीब! हम सब तुम्हारे साथ और इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को तैयार। तो ठीक है, जाओ और शाम के लिए तैयारी। लगा कि शायद वो मेरी मौत का परवान लेकर आए। चलो चलो चलो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आवाज बंद करो और चलो। दादा, इससे बता दो भाई, तुम्हें हाथ में आला पिलातुस की अदालत में जाना है जहां तुम्हारा फैसला होगा और मैं उनके साथ रवाना और फरीसी का पिलातुस सबसे अदालत पर विराजमान था। लोग मसीह के खिलाफ नारे लगा रहे थे कि उसे सलीब दी जाए। पिलातुस ने मुझे पेश किया और कहा, आज ईद फसह का दिन है। इस दिन दस्तूर के मुताबिक एक कैदी को छोड़ देना जरूरी है। ये करना था तुम्हारा मशहूर कैदी जिसके दस्तूर के बाद जरूरी है कि इसे हलाक किया जाए। और दूसरा जो नासरी कहलाता है और जिसमें बैंक कोई जुर्म या बुराई नहीं पाता, जिसके सबब से वो समाज है। ऐसा तुम पर छोड़ता हूं कि तुम किसको हाथते हो, जिसको या पकड़ा हो।
मैं हैरान हुआ और पहली बार मैंने इस नजर में सुबह इससे हाथ बंधे थे और मैं जब एक ऐसे कमरे का पत्थर बोला जो बेजबान हो और मकतल की तरफ ले जाया जा रहा। मुझे छोड़ दिया बहुत ये मोटरसाइकिल के साथ मुझ जैसे शख्स को रिहाई मिल गई। मैं भागा अपने दोस्तों पर था मगर वो उस जगह जाने की तैयारी कर रहे थे जहाँ जैसे कुछ मेरे ले जाएगा। मैं डरा अगर मैं भी वहां गया फिर मैं धनिया हूँ। मैंने सोचा कि उन लोगों के पास था जिन्होंने मुझे जैसे के रस्ते में मारा था। मैं ऐसे ही शख्स के पास था तो वो सच उसने मेरी तरफ कोई सवाल नहीं। मैं छुपा छुपाता उस जगह पहुंचा जहां सरदार साहिब फकीर शरीफ यसू जख्मी था। उसके सर पर कांटों का ताज था, जिसम की ढाल फट चुकी थी। शायद ये लोग उसे बेतहाशा कोड़े मार चुके। तब एक भारी सलीब यसू पर लाद दी गई। कुछ दूर चला और लड़खड़ा कर गिरा और मनो वजनी सलीब उस पर आ गई। सिपाही चिल्लाए, सलीब उठाओ, उठो। पर वो न उठ सका। एक देहाती ये सब देख रहा। उसने सिपाहियों ने पकड़ लिया और सलीब उस पर लाद दी गई। वो सलीब लेकर चला और यसू थका मांदा जख्मों से चूर साफ था। मैं उनके पीछे पीछे चला। वो एक वीराना पहाड़ी पर पहुंचे। इसका नाम गलगता था। लटकाया गया और उसके हाथ और पांव में मेखें काट दी गई। मैं एकदम आगे आया क्योंकि यसू की जख्मी हालत के पेश नजर ये बहुत था, मगर यसू खामोश था। उन्होंने एक झटके से उसकी शरीर को खड़ा किया और जमीन में गाड़ दिया। तब यसू के होंठ हिले। मैं समझा कि वो आहो फरियाद कर रहा है। मैं थोड़ा और करीब गया। तब ये सुना कि यसू कह रहा था, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मैं हैरान था कि ये क्या शख्सियत है। इतने जुल्म के बावजूद कोई शिकायत नहीं। मेरे नजदीक ये पागलपन था। मैंने सलीब पर फिर नजर की। यसू के दाएं बाएं दो और सलीबें बड़ी हुई जिन पर दो डाकू लटक गए। मैं उन दोनों को जानता था। उनके गुनाह और जुर्म बहुत थे। उन्हें अपने गुनाहों की सजा मिल गई। मैंने नजर घुमाकर फकीरों और फरीसियों, ये खुदा का बेटा है। अब खुदा इसकी मदद क्यों नहीं करता? ये तो अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता था। तब मैंने फिर सलीब पर नजर की और मुझे यसू के सर के ऊपर सलीब पर एक तख्ती नजर आई जिस पर लिखा था, यहूदियों का बादशाह। एक सरदार साहब बड़े जोर से तकरीर कर रहा था। तूने हैकल को ढाकर 3 दिन में सिक्के बना देने का दावा किया था। अब सलीब पर से उतरा और अपने आप को बचा ले। इसने औरों को बचाया, लेकिन ये अपने आप को नहीं बचा सकता। मैंने जब ये सुना तो डरा कि शायद मुझ पर उनकी नजर पड़ गई हो। मैं वहां छुपकर सलीब के पीछे आ गया तो मैंने सुना कि एक डाकू मसीह का मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था, का बेटा है तो सलीब पर से उतर रहा और हमारे जान भी बचा ले। मगर दूसरे डाकू ने उसको काट कर कहा, तुम चुप रहो, तुम्हें और मुझे तो गुनाहों की सजा मिल रही है, मगर इस शख्स में कोई बुराई नहीं। उस डाकू ने यीशु की तरफ मुंह मोड़ा और कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में दाखिल हो तो मुझे याद रखना
तब यीशु ने नहीफ आवाज में कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैंने देखा कि वहां यीशु के रिश्तेदार, अजीज और दोस्त भी मौजूद थे जो रो रहे थे। उनमें एक औरत पूरी तरह बैन कर रही थी। तब यीशु ने उस औरत से कहा, ऐ औरत, देख, ये तेरा बेटा है। और वहीं पर एक जवान जो उस औरत के साथ था उसको कहा, देख, ये तेरी मां है। ये वो वक्त था जब सूरज सर पर चमक रहा था। तब अचानक न जाने कैसे सब जगह अंधेरा छा गया, कुछ नजर न आता था। एली एली लमा सबकतनी, मैं बोला, एक शख्स चिल्लाया, ये एलिया को पुकारता है। वो दौड़ा और स्पंज का टुकड़ा किसी चीज में डुबोकर सरकंडे पर रखकर जैसे कुछ चिसाने लगा। मगर बाकियों ने कहा, देख एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। इस पर यीशु ने चिल्ला कर कहा, तमाम हुआ। और उसका सर जमीन लगी, पता नहीं तब गई, कहीं से चीख की आवाज आई। मैं भागा, मगर एक बड़े तगड़े का झटका मैंने देखा कि कभी खुल रही हरे मुर्गे घरों में से निकल पड़े और शहर की तरफ। मैं समझा कि कयामत आ गई। मैं गिरता पड़ता शहर की तरफ भागा। कुछ सुझाई न मिला। मैं अपने मकाम तक पहुंचा ही था कि बहुत बड़ा दंगल आया। दफन किया गया। मैंने दूर से देखा कि एक चट्टान को खोदकर कब्र बनाई गई है। उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया था और चंद सिपाही वहां पहरा दे रहे थे। मैंने जरा गौर से देखा तो पत्थर पर मोहर लगी हुई थी। मैं वापस अपने घर की तरफ पलटा। मैं सोच रहा था कि ये क्या शख्सियत थी जिसकी मौत पर पूरी कायनात तरम परम हो गई थी। आखिर कब्र पर पहरे बिठाने की क्या जरूरत थी? उसे ये लोग मार डालना चाहते थे, बस मार दिया। अब लाश किसी का क्या बिगाड़ सकती है? कुछ दिनों बाद मेरे दिल में फिर से जुस्तजू पैदा हुई कि चलकर देखना चाहिए कि अब भी कब्र पर पहरेदार हैं या नहीं। लुढ़का हुआ एक दर पड़ा था। मुझे वहां कोई सिपाही नजर नहीं आया। मैं झिझकता हुआ आगे बढ़ा और कब्र में झांका तो मुझे लाश नजर नहीं आई। मैं हैरान रह गया और सोचा कि यीशु के अजीजों से पूछूं। मैं भागा भागा उनके ठिकाने पर पहुंचा। एक कमरे में वो आपस में बातें कर रहे थे। मैंने चुपकर सुना तो कुछ यूं मंजर सामने आया। कुछ औरतें कब्र की तरफ चली। उनका इरादा था कि 3 दिन पुरानी लाश हो चुकी है और दस्तूर के मुताबिक उन पर खुशबू लगाने का वक्त है। मगर उन्हें वही पत्थर का ख्याल आया तो कब्र के मुंह पर धरा था। वो सोच रही थी कि इस पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। 2 सिपाही कब्र के दाएं बाएं पहरा दे रहे थे कि एक फरिश्ता आम था। जब उसके पांव जमीन पर लगे तो जमीन हिलने लगी। ऐसे कुछ खड़ा हो गया था। सिपाहियों ने जल्दी से जमीन को पकड़ लिया और भारी पत्थर को रखने दिया तो वो डर गए और भाग गए। मैं जानता हूँ कि ये दिमाग की जिसे कभी मगर अब वो यहाँ नहीं है। वो उठा है। आओ इस जगह को देखो जहाँ पड़ा है। औरतों ने देखा अब वो बिल्कुल खाली पड़ी है और सिर्फ कपड़े पड़े हैं। फिर उसने फिर कहा, तो ये याद है कि खुदावन ने तुम्हें क्या कहा था? मैं मरूंगा मगर तीसरे दिन भी उठूंगा। और वो ही उठा है।
क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? उसने मेरे लिए दुख उठाए और अब मुझे क्या करना चाहता है? लेकिन जब मैं आज की दुनिया के इंसानों पर नजर करता हूं तो मुझे दातादात बराबर नजर आते हैं। मेरी तरह खूनी, साजिशी, डाकू और चोर। तो अब मैं ये सवाल अपने उन बराबरों के सामने पेश करता हूं कि क्या इस हकीकत को जान लेने के बाद हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए?